آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان۔ کلام مفسد نماز ہے، یعنی نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے، بھلے سے ایک آدھ بات بولے یا زیادہ۔ کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کسی کو بھولے سے بھی سلام کیا تو نماز جاتی رہی، چاہے خالی السلام ہی کہا ہو، علیکم نہ کہنے پایا ہو۔ زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی، اور ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی۔ نماز میں چھینک آتے ہی الحمدللہ نہ کہے، اگر کہہ دیا تو نماز نہ گئی۔ خوشی کی خبر کے جواب میں الحمدللہ کہا، یا بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا تعجب کی خبر پر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا تو نمازیں جاتی رہی۔ ہاں، اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہ کیا تو نہ گئی۔ کھکھارنے میں جب دو حرف نکلیں جیسے اخ تو یہ مفسد نماز ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ صحیح غرض ہو۔ اگر عذر سے ہے جیسے طبیعت نے مجبور کیا، صحیح غرض کے لیے ہو جیسے قرات میں آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے یا دوسرے کو اپنی نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کے لیے، تو اس میں نماز نہیں ٹوٹی۔ مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا تو نماز جاتی رہی۔ امام نے اپنے مقتدی کے سوا اور کا لقمہ لیا، نماز فاسد ہو گئی۔ آہ اوہ اف تہ یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے، یا آواز سے رویا یا حرف پیدا ہوئی، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز اور حروف نہیں نکلتے تو حرج نہیں۔ مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلتی تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ یوں ہی چھینک، کھانسی، جمہائی، ڈکار میں جتنے حرف مجبوراً بے اختیار نکلتے ہیں وہ معاف ہیں۔ پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہے کہ مفسد نہیں، مگر قصدن کرنا مکروہ ہے، اور اگر پھونکنے میں دو حرف پیدا ہو جیسے اف تف تو مفسد نماز ہے۔ نماز میں قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، اگر پڑھتا تو ہے یاد سے اور نظر پڑتی ہے لکھے ہوئے پر تو حرج نہیں۔ عمل کثیر کہ نہ عمل نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، مفسد نماز ہے۔ عمل قلیل مفسد نہیں۔ عمل کثیر و قلیل کی تعریف: جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں، تو وہ عمل کثیر ہے۔ اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شبہ یا شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے۔ کرتا یا پاجامہ پہنا یا تربند باندھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جان کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر تل بلا چبائے نگل گیا یا کوئی بوند منہ میں گری اور نگل گیا، نماز جاتی رہی۔ موت، جنون، بے ہوشی سے نماز جاتی رہی۔ اگر وقت میں آرام ہو جائے تو ادا پڑھے، اور اگر وقت کے بعد آرام ہو تو قضا پڑھے، جبکہ جنون و بے ہوشی ایک دن ایک رات سے زیادہ نہ ہو، یعنی نماز کے 6 وقت کامل تک برابر نہ رہا ہو کہ اگر 6 وقت کامل تک برابر رہے قضا واجب نہیں۔ قصدن وضو توڑا یا کوئی سبب غسل کا پایا، نماز جاتی رہی۔ کسی رکن کو ترک کیا جبکہ اس کو کسی نماز میں ادا کر لیا ہے، نماز جاتی رہی۔ بلا عذر نماز کی کسی شرط کو ترک کیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ قاعدہ آخرہ کے بعد سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت یاد آیا تو اس کو ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد پھر قاعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ کسی رکن کو سوتے میں ادا کیا تھا، اس کا اعادہ نہ کیا، نماز نہ ہوئی۔ نماز میں سانپ بچھو مارنے کی صورت: سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی ضرورت ہو۔ اگر مارنے میں 3 قدم یا زیادہ چلنا پڑا تو 3 ضرب یا زیادہ لگنی پڑی تو نماز ٹوٹ گئی۔ نماز میں سانپ بچھو مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز ٹوٹ جائے۔ سانپ بچھو کو نماز میں مارنا اس وقت مباح ہے جب سامنے گزرے اور تکلیف دینے کا ڈر ہو، اگر کاٹنے کا ڈر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی یوں کی کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجایا تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا اور اس سے نماز نہ جائے گی۔ تکبیرات انتقال میں اللہ کے الف کو یا اکبر کے الف کو کھینچ کر اعلیٰ یا اکبر کہا کہ بے کے بعد الف بڑھا دیا، اکبار ہو گیا، تو ان صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ قرات
या अज़कार नमाज में ऐसी गलती जिससे मायने फासिद हो जाए नमाज तोड़ देती है। नमाजी के आगे से चाहे आदमी गुजरे या जानवर नमाज नहीं टूटती, अलबत्ता गुजरने वाला बहुत गुनाहगार होता है। अगर नमाजी के सामने से जाने वाला जानता कि इसमें क्या गुनाह है तो 100 बरस खड़े रहने बल्कि जमीन में धंस जाने को अच्छा समझता और नमाजी के आगे से न गुजरता। अगर मैदान में नमाजी के सामने से 3 गज छोड़कर आगे से गुजरते तो हर्ज नहीं, लेकिन घर और मस्जिद में ऐसा नहीं कर सकता। नमाजी के आगे सुतरा हो तो सुतरा के पीछे से गुजरने में कोई हर्ज नहीं। ऐसी कोई चीज जिससे आड़ हो जाए, सुतरा 1 हाथ ऊंचा 1 अंगुल मोटा हो तो काफी है, ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ ऊंचा हो। सुतरा दाहिनी भौं के सामने गाड़ना अफजल है। सुतरा किस चीज से हो सकता है? दरख्त, जानवर, आदमी वगैरह का भी सुतरा हो सकता है। इमाम का सुतरा मुक्तदी के लिए भी सुतरा है। मुक्तदियों के लिए अलहदा सुतरा की जरूरत नहीं। लिहाजा अगर मस्जिद में भी मुक्तदी के आगे से गुजर जाए जब भी इमाम के आगे से न हो तो हर्ज नहीं। नमाजी अपने आगे से गुजरने वाले को अगर रोकना चाहे तो सुभान अल्लाह कहे या जोर से किरात करने लगे या हाथ के इशारा कर दे, लेकिन बार बार ऐसा न करे। अमले कसीर होने की सूरत में नमाज जाती रहेगी। नमाज के मकरूहात का बयान। कपड़े या बदन या दाढ़ी के साथ खेलना मकरूह तहरीमी है। कपड़ा समेटना, जैसे सजदे में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना, अगरचे गर्द से बचाने के लिए हो मकरूह तहरीमी है और बिला वजह हो तो ज्यादा मकरूह है। कपड़ा लटकाना, जैसे सर या मोढ़े पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हो, मकरूह तहरीमी है। नमाज के कपड़ा लटकाने का हुक्म। अगर कुर्ते वगैरह की आस्तीन में हाथ न डाले बल्कि पीठ की तरफ फेंक दे तो यह भी मकरूह तहरीमी है। कंधे पर इस तरह रुमाल डालना कि किनारा पेट पर लटकता हो और दूसरा पीठ पर, यह मकरूह तहरीमी है। रजाई या चादर या शान के किनारे दोनों मोढ़े में लटकते हो, यह ममनू व मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर एक किनारा दूसरे मोढ़े पर हो, दूसरा लटका रहा तो हर्ज नहीं। कोई आस्तीन आधी कलाई से ज्यादा चढ़ी हुई या दामन समेटे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, चाहे पहले से चढ़ी हो या नमाज में चढ़ाई हो। मर्द का जूड़ा बांधे हुए नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है और अगर नमाज में जूड़ा बांधे तो नमाज फासिद हो जाएगी। कंकरियां हटाना मकरूह तहरीमी है, लेकिन अगर सुन्नत के तौर पर सजदा न अदा होता हो तो एक बार हटा सकता है। अगर बगैर हटाए वाजिब न अदा होता हो तो हटाना वाजिब है, चाहे कई बार हटाना पड़े। नमाज में उंगलियां चटकाने का हुक्म। उंगलियां चटकाना, उंगलियों की कैंची बांधना यानी एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगली में डालना मकरूह तहरीमी है। नमाज के लिए जाते वक्त और नमाज के इंतजार में भी यह दोनों चीजें मकरूह है। कमर पर हाथ रखने का हुक्म। कमर पर हाथ रखना मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा भी कमर पर हाथ न रखना चाहिए। इधर उधर मुंह फेर कर देखना मकरूह तहरीमी है, चाहे थोड़ा ही मुंह फेर लिया हो। अगर मुंह न फेरे, सिर्फ कंखियों से इधर उधर बिला हाजत देखे तो कराहत तंजीही है और नादिरन किसी गर्ज सही से हो तो हर्ज नहीं। आसमान की तरफ निगाह उठाना भी मकरूह तहरीमी है। तशहुद या सजदों के दरमियान कुत्ते की तरह बैठना, मर्द का सजदे में कलाइयों का बिछाना, किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। कपड़े में इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर न हो मकरूह तहरीमी है। यूं भी बेजरूरत इस तरह लिपटना न चाहिए और खतरे की जगह तो सख्त ममनू है। यूं ही नाक मुंह छिपाना भी मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी किसको कहते हैं? बेजरूरत खखार निकालना, कसदन जमहाई लेना मकरूह तहरीमी है। अगर जमहाई खुद आए तो हर्ज नहीं, मगर रोकना मुस्तहब है। अगर रोके से न रुके तो होंठ दांतों से दबाए और इस पर भी न कर सके तो हाथ मुंह पर रख ले कि क़ियाम में दाहिना हाथ रखे और बाकी हालतों में बाया। सिर्फ पजामा या तहबंद पहनकर नमाज पढ़ी और कुर्ता या चादर मौजूद है तो नमाज मकरूह तहरीमी है और जो दूसरा कपड़ा नहीं तो माफ है। किसी आने वाले की खातिर नमाज को तूल देना मकरूह तहरीमी है और अगर जमात जाने के ख्याल से 1-2 तस्बीह के बराबर तूल दिया तो कराहत नहीं। गैर की जमीन पर नमाज पढ़ने का हुक्म। कब्र का सामने होना जबकि कोई चीज बीच में हायल न हो तो मकरूह तहरीमी है। जमीन मकसूब या पराए खेत में जिसमें जराद मौजूद है या जुते हुए खेत में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मकबरा में जो जगह नमाज के लिए मुकर्रर हो उस जगह में कब्र न हो तो वहां नमाज पढ़ने में हर्ज नहीं। कराहत उस वक्त है कि कब्र सामने हो और कब्र के दरमियान कोई चीज बकदरे सुतरा हायल न हो, वरना अगर कब्र दाएं बाएं और पीछे हो सुतरा के बराबर कोई चीज हायल हो तो कुछ भी कराहत नहीं। कुफ्फार के इबादत खानों में जाने का हुक्म। कुफ्फार के इबादत खानों में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है कि वह शयातीन की जगह है, बल्कि उनमें जाना भी मना है। उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने का हुक्म। उल्टा कपड़ा पहनकर
या ओढ़ कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। यूं ही अंगरखे के बंद न बांधना और अचकन शेरवानी वगैरह के बटन न लगाना, अगर उसके नीचे कुर्ता वगैरह नहीं और सीना खुल रहा हो तो मकरूह तहरीमी है, और अगर कुर्ता वगैरह है तो मकरूह तंजीही है। तस्वीर के अहकाम, जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना नाजायज है। अगर तस्वीर नमाजी के सर पर हो यानी छत में बनी हो या लटकी हो, सजदे की जगह में हो कि उस पर सजदा वाक़ होता हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। यूं ही नमाजी के आगे पीछे दाएं बाएं तस्वीर का होना मकरूह तहरीमी है और पीछे होना भी मकरूह है, अगरचे आगे और दाएं बाएं होने से कम। अगर तस्वीर फर्श पर है और उस पर सजदा न होता हो तो कराहत नहीं। अगर तस्वीर गैर जानदार की है जैसे दरिया, पहाड़, दरख्त, फूल, पत्ती वगैरह तो कुछ हर्ज नहीं। थैली या जेब में तस्वीर छुपी हुई है तो नमाज में कराहत नहीं। तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए है और उस पर कोई दूसरा कपड़ा पहन लिया कि तस्वीर छुप गई तो अब नमाज मकरूह न होगी। अगर तस्वीर जिल्लत की जगह में हो जैसे जूता उतारने की जगह में, तो ऐसे फर्श में हो जिसके पांव से रौंदते हो तो नमाज में कराहत नहीं, जबकि उस पर सजदा न हो, और घर में होने से भी कराहत नहीं। अगर तस्वीर इतनी छोटी हो कि खड़े होकर देखने में उसके बदन के हिस्से अलग अलग न दिखाई देते हों, ऐसी तस्वीर के नमाजी के आगे पीछे दाएं बाएं होने में नमाज मकरूह न होगी। अगर तस्वीर का पूरा चेहरा मिटा दिया हो तो कराहत जाती रही। तस्वीर के अहकाम तो नमाज के हैं, रहा तस्वीर का रखना तो इसके बारे में हदीस है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जबकि तौहीन के साथ न हो और न इतनी छोटी हो कि खड़े होकर देखने में बदन के हिस्से अलग अलग न दिखाई दें। तस्वीर का बनवाना दोनों हराम है, चाहे दस्ती हो या अक्सी, दोनों का एक ही हुक्म है। मकरूह तंजीही, सजदा या रुकू में बिला जरूरत 3 तस्बीह से कम कहना मकरूह तंजीही है। हाँ, अगर वक्त कम हो और रेल जाने का खौफ हो तो हर्ज नहीं। काम काज के कपड़ों से नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही है, जबकि कपड़े हों वरना कराहत नहीं। नंगे सर नमाज पढ़ने के अहकाम, सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना यानी टोपी से बोझ मालूम होता है या गर्मी मालूम होती है, इस वजह से नंगे सर पढ़ता है तो यह मकरूह तंजीही है। और अगर नमाज को हकीर ख्याल करके नंगे सर पढ़े, मसलन नमाज कोई मोहत्तम बिशान चीज नहीं जिसके लिए टोपी अमामा पहना जाए, तो यह कुफ्र है। और अगर खुशू व खुजू के लिए नंगे सर पढ़ी तो मुस्तहब है। नमाज में टोपी गिर पड़ी तो उठा लेना अफजल है, जबकि अमले कसीर से न हो वरना नमाज फासिद हो जाएगी, और बार बार उठानी पड़े तो छोड़ दे, और न उठा लेने से हुजू मकसूद हो तो न उठाना अफजल है। माथे से खाक या घास छुड़ाना मकरूह है, जबकि नमाज में तशवीश न हो और तकब्बुर की वजह से छुड़ा रहा हो तो मकरूह तहरीमी है। और अगर तकलीफ दे हो या ख्याल बढ़ता हो तो हर्ज नहीं, और नमाज के बाद छुड़ाने में तो मुतलकन मजायका नहीं बल्कि छुड़ा देना चाहिए ताकि रिया यानी नुमाइश न होने पाए। यूं ही हाजत के वक्त पेशानी से पसीना पोंछना बल्कि हर वह अमले कलील की नमाज के लिए मुफीद हो जायज है, जो मुफीद ना हो वो मकरूह है। नमाज में नाक से पानी बहा तो उसको पोंछ लेना जमीन पर गिरने से अच्छा है, और अगर मस्जिद में हो तो पोंछना जरूरी है कि मस्जिद में न गिरने दे। नमाज में बगैर उज्र 4 जानू बैठना मकरूह है, और उज्र हो तो हर्ज नहीं, और अलावा नमाज के इस तरह बैठने में कोई हर्ज नहीं। सजदा को जाते वक्त घुटने से पहले हाथ रखना और उठते वक्त हाथ से पहले घुटने उठाना बिला उज्र मकरूह है। रुकू में सर को पीठ से ऊंचा या नीचा रखना मकरूह है। उठते वक्त आगे पीछे पांव उठाना मकरूह है। जूं या मच्छर जब ईजा पहुंचाते हो तो पकड़ कर मार डालने में हर्ज नहीं, जबकि अमले कसीर न हो। मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ने का हुक्म, मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ना मकरूह है। कोई शख्स खड़ा या बैठा बातें कर रहा है, उसके पीछे नमाज पढ़ने में कराहत नहीं, जबकि बातों से दिल बटने का खौफ न हो। जलती आग नमाजी के आगे होना बाइसे कराहत है, शमा या चिंगारी में कराहत नहीं। बगैर उज्र हाथ से मक्खी मच्छर उड़ाना मकरूह है। ऐसी चीज के सामने जो दिल को मशगूल रखे नमाज मकरूह है, मसलन जीनत, लहव, लाइब वगैरह। नमाज के लिए दौड़ना मकरूह है। मुसीबत ज़दा के लिए नमाज तोड़ना, यानी किन किन सूरतों में नमाज तोड़ देना जायज है। कोई मुसीबत ज़दा फरियाद कर रहा हो, उसी नमाजी को पुकारता हो, या मुतलकन किसी शख्स को पुकारता हो, या कोई डूब रहा हो, या आग से जल जाएगा, या अंधा राहगीर कुएं में गिरने वाला है, तो इन सब सूरतों में नमाज तोड़ देना वाजिब है, जबकि ये नमाजी उसको बचाने की कुदरत रखता हो। पेशाब पाखाना मालूम हुआ या कपड़े या बदन पर इतनी नजासत देखी कि जितनी नजासत के होते नमाज जायज नहीं, या
नमाजी को किसी अजनबी औरत ने छू दिया तो इन 3 सूरतों में नमाज तोड़ देना मुस्तहब है, जबकि जमात वक्त न जाता रहे और पेशाब पाखाना बहुत जोर किए हो तो जमात छूट जाने का भी ख्याल न करे, हाँ वक्त जाने का ख्याल किया जाए। सांप वगैरह मारने के लिए नमाज तोड़ना, सांप वगैरह मारने के लिए जबकि काटने का सही डर न हो तो नमाज तोड़ देना चाहिए। कोई जानवर भाग गया, उसको पकड़ने के लिए या बकरियों पर भेड़ियों के हमला करने के डर से नमाज तोड़ देना जायज है। नुकसान से बचने के लिए नमाज तोड़ना, अपने या पराये 1 दिरहम के नुकसान का डर हो, मसलन दूध उबल जाएगा या गोश्त, तरकारी, रोटी वगैरह जल जाने का डर हो, या 1 दिरहम की कोई चीज चोर उचक्का ले भागा, इन सूरतों में नमाज तोड़ देने की इजाजत है। अगर नफल नमाज में हो और माँ बाप दादा दादी वगैरह पुकारें और इनको उसका नमाज में होना मालूम न हो तो नमाज तोड़ दे और जवाब दे।